ایک بات کہی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو دھرنے دیے جا رہے ہیں اس سے ایمبولینس سے روکی گئی ہیں، تقریباً 10 اموات ہوئی ہیں، جبکہ آپ لوگوں کا کلیم تو یہ ہے کہ ہم نے کال ہی نہیں کی کہ آپ کی پارٹی اس میٹر کو کیسے سالو کرے گی کہ کم از کم ایمبولینسوں کو آنے کا راستہ دیا جائے، اور کیا ان کا یہ دعویٰ درست ہے کہ 10 افراد جاں بحق ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے اس چیز کا، لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان سے لوگوں کی محبت ہے اور وہ اتنا بڑا لیڈر ہے جو زیادتیاں کر رہے ہیں، اور پنجاب کی جو جیل ہے، جس جیل میں عمران خان صاحب ہیں، وہ مریم کے ہی انڈر ہے ایز چیف منسٹر. اور جس طریقے سے وہ بہیو کر رہی ہے کہ ایکسیس نہیں دے رہے فیملی کو، خالی ملوا ہی دیں نا، خان صاحب خود بتا دیں گے کہ جی کیا پوزیشن ہے، وہ جو معالج کا کہہ رہے ہیں، فیملی کا کہہ رہے ہیں، تو ملوانے میں کیا حرج ہے ان کو؟ کیا مریم نواز نہیں ملتی تھی نواز شریف سے؟ کیا مریم نواز کے والد کو ہم نے چاہے ٹھیک تھا یا چاہے غلط تھا پریکٹس میں، کیا ہم نے 30 روپے کے اسٹامپ پہ بار ملک نہیں بھیجا؟ تو بات یہ ہے کچھ انسانیت بھی ہوتی ہے. چلو قانون سے ملک پہ نہیں ہے، آئین بھی نہیں ہے، انسانی حقوق بھی نہیں ہے، لیکن انسانیت تو ہے. انسانیت میں بھی کوئی کسی کا ظرف بھی ہوتا ہے، کوئی احسان بھی ہوتا ہے. عمران خان کا احسان ہے ان کے اوپر، یہ تو احسان فراموشی ہے کہ اس پہ جب وقت ہے تو اب اس طرح کر رہے ہیں. باقی جو راستے بند ہیں اس میں ایمبولینس کو فیملی کو راستہ دیا جا رہا ہے، لیکن ظاہری بات ہے ہو سکتا ہے بعد فیملی پھنس جاتی ہے. جب 5-6-8 منٹ کی لائن لگ جائے اس میں نکلنا بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تکلیف تو بالکل ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ادھر ہماری تکلیف بھی دیکھیں نا کہ ہمارا لیڈر اس وقت اس کی صحت کا سیریس ایشو بنا ہوا ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی. اچھا، گنڈپور صاحب کہ بالکل ڈیڈ لاک ہے یا عمران خان کی صحت کے حوالے سے کچھ جو پاور کوریڈور ہیں وہاں سے کچھ سنوائی ہوئی ہے، کوئی بات چیت ہوئی ہے، یا بالکل ڈیڈ لاک ہے؟ آپ کے نالج میں کیا ہے؟ میرا تو رابطہ ہے نہیں، جن لوگوں کا رابطہ ہے اور خاص طور ان کو نامینیٹ کیا ہے تو ان کو یہ پتہ ہو سکتا ہے کہ کس سے بات ان کی ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے، ڈیڈ لاک کہاں پہ ہے، کیا آفر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. تو بس ہمیں تو جو چیز آتی ہے ہم تو وہی آپ کو بتا سکتے ہیں، باقی وہ بات ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے کمنٹ میں کیسے کروں. اچھا، میڈیا بھی اس والے سے بڑا کنفیوز ہے کہ جو سابق سی ایم ہے جس کے بڑے اچھے مربوط رابطے تھے پاور کوریڈور سے اور جو بڑے ایفرٹس کر رہا تھا، وہ پولیٹیکل کمیٹی ہی میں نہیں ہے، اس کا نام ہی نہیں لیا گیا. بس وہ تو پولیٹیکل کمیٹی بنائی ہے، سوا کمرایا صاحب نے، ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ تو ان کی مرضی ہے، اس کو ڈالا ہے انہوں نے. تو باقی ایز ورکر ہم موجود ہیں اور جو بھی ہمیں پارٹی لائے عمل دے گی، جو خان صاحب نے لوگ نوٹیفائی کیے ہیں، نامینیٹ کیے ہیں، ہم اس کے پابند ہیں. اچھا، ایک اور بات، آپ نے کل جو انٹرویو دیا ہے بہت کھل کے بات کرتے ہیں، کل بھی آپ نے اسی لیبل لہجے میں بات کی، کیا آپ نے اپنے لیے پارٹی میں مشکلات ہی پیدا کر دی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ایک تو مسئلہ یہ ہے نا، ایک کانٹینٹ ہوتا ہے کچھ اور اس کو پھر بنا دیا جاتا ہے کچھ. ایک تو میری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ ہیں نا، دیکھیں آپ میڈیا سے یا سوشل میڈیا یا ویلاگر سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، اس میں تو ایک چاہیے، اس کو مرچ چاہیے، کوئی چٹکلی چاہیے نا، اس نے چلانی ہے، لیکن عوام کو تحقیق کرنی چاہیے. آپ کانٹینٹ کو دیکھیں. محسن نقوی کا میں نے جو کانٹینٹ بتایا ہے وہ مذاکراتی اور مذاکراتی کمیٹی کے حوالے سے بتایا ہے، میں اس پہ قائم ہوں کہ اس نے پوری محنت دل کے ساتھ کوشش کی کہ عمران خان کا مسئلہ حل ہو. جو اس کا 9 مئی کے بعد، 9 مئی سے پہلے اس کا 26 نومبر کو جو رویہ ہے، اس کے بارے میں اسمبلی فلور پہ میں بتا چکا ہوں، اور فلور آف دا ہاؤس میری اسپیچ موجود ہے کہ میرا اس کے بارے میں کیا رہا ہے، اور کل میں نے رات کو پھر دی ہے کہ وہ اس نے جو ظلم کیا ہے، قتل کیا ہے، شہید کیا ہمارے لوگوں کو. اب وہ کانٹینٹ اور ہے، یہ کانٹینٹ اور ہے، اس کانٹینٹ کو آپ مس کر کے اور لوگ تحقیق کرتے نہیں ہیں. بس دوسرا صنم جاوید والا، صنم جاوید کا میں نے یہ بولا کہ صنم جاوید گھومنے کے لیے نکلی مجھے بتائے بغیر. صنم جاوید میرے پاس کتنے عرصے تھی پتہ ہے آپ کو؟ 2 مہینے میرے پاس یہاں تھی، وہ سیف ماشاءاللہ میری بہنوں کی طرح ہے. اس کے بعد میرے پاس کے پی ہاؤس میں سی ایم ہاؤس میں تھی. کتنا عرصہ، کتنے مہینے، ٹھیک ہے. اب مجھے بتائے بغیر اب گھومنے جانے، تو ہماری ماں بہن گھومنے نہیں جاتی ہے، اس کو غلط رنگ دے دیا انہوں نے. وہ مجھے بتائے بغیر گئی، زیادتی کی نا اس نے کہ مجھے بتائے بغیر کیسے وہ جا رہی ہے. اچھا، اب سی ایم ہاؤس میں کچھ لوگوں کی ایکسیس ہے، گاڑیوں کی ایکسیس ہوتی ہے، اس میں وہ چلی گئی اس ایکسیس کی وجہ سے. اس کے بعد وہ سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ جب وہاں پہ گئی، ادھر جا کے سہیلی ایف آئی آر ہوئی پڑی، اسے اس کی سہیلی کا نام بھی ہے، وہاں سے چلی گئی وہ شاپنگ مال سے کافی پینے. ایف آئی آر موجود ہے، میں نے ایف آئی آر کرائی، سے موجود ہے اپنی سہیلی کے ساتھ. وہاں سے جب وہ آ رہی تھی تو اپرچونیٹی تھی، اس سے زیادہ اگلے اس کو اغوا کر کے لے گئے. سارا بلبہ میرے پہ آ گیا کہ جی علی امین نے اغوا کروا لیا ہے، علی امین نے پکڑوا دیا ہے. تو میں نے تو یہ کہا ہے، وہ نام میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ میں کسی بندے کا نام اس کی ایکسیس تھی اور وہ اس کو لے گیا، میں نہیں بتا سکتا. کیوں بتاؤں؟ میں اس کو رنگ دے دیا کہ جی اس کریکٹر سے بات کر رہا ہے. وہ میری بہنوں کی طرح میں نے اس کو رکھا ہوا تھا. میں تو کہہ رہا ہوں گھومنے ہماری بہن نہیں جاتی، گھومنے گئی مجھے بتائے بغیر گئی، اور وہ گھوم رہی ہے ادھر. پہلے ایک گاڑی میں گئی، وہ گاڑی میں پھر بھی کوئی سیکورٹی ہو جانی تھی اس کی، کیونکہ ایکسیس والی گاڑی تھی، کسی ایسے بندے کی ہوگی نا کہ جس کی سی ایم ہاؤس میں ایکسیس تھی، سرکاری بندہ ہوگا. اس کے بعد پرائیویٹ سہیلی کے ساتھ بیٹھ کر، اور ایف آئی آر میں ساری بات موجود ہے، اس کی سہیلی کا پورا بیان ہے اس کے اندر جو میں نے کروائی ہے.
दूसरा जाके कॉफ़ी पी रही है और अकेली लड़की के साथ घूम रही है, तो बाद उसका कंटेंट क्या बना दिया, कंटेंट कुछ और था कि जी उसे कंटेंट ने बात कर दिया। ये इतना लानती काम है कि हमारे लोगों में अखलाकियात ख़त्म हो चुकी हैं, कंटेंट कुछ और होता है, बना कुछ और देते हैं, और इससे हमारे जो अखलाकियात गिर रही हैं, हमारी कौम उससे पीछे जा रही है। तो ये लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि कंटेंट क्रिएटर तो अपना कंटेंट निकालता है अपनी चीज़ चलाने के लिए, आप पे ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उस कंटेंट को देख कर कोई भी राय कायम करते हैं तो राय कायम करें। ऐसे ही बस शुरुआते में जो है ना आप शुरू हो जाते हैं, बगैर तहकीक के शुरू हो जाते हैं। इस्लाम में भी है कि किसी के बारे में कोई राय कायम करो, किसी के बारे में कोई इस तरह की बात करो तो पहले तहकीक करो, वरना तुम गुनाहगार हो उस शख्स के। तो मेरी अपने लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप पॉजिटिव मैच्योरली बिहेव करें। इस तरीके के बिहेवियर जो हैं ये अजीम कौमों के नहीं होते, अजीम लोगों के नहीं होते। तो ये कंटेंट क्रिएटर के पीछे जो इस तरह गलत कंटेंट, मैंने चेक तो किया कि सवाल क्या हो रहा है, बना क्या दिया। सवाल हो रहा है मुज़ाकरात के हवाले से, बना दिया उसको 26 नवंबर। तो अब 26 नवंबर में मेरी स्पीच निकाल दी असेंबली वाली, उसके 3 दिन बाद या 2 दिन बाद की, तो उससे कोई माफ़ी मांगेगा मुझसे कि इन्होंने क्यों इतना गलत, ना कोई भी नहीं मांगेगा। और इस बंदे ने मार दिए, पूछने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए वो जो बेलगाम में घोड़ा बनाया हुआ है, कोई सजा जदा नहीं है, जिसके मुँह में जो है अगले पे इल्ज़ाम लगा दे, वहाँ तो कंटेंट को चेंज कर दे, कोई सजा यहाँ पे है नहीं, तो उसका लोग गलत फ़ायदा ले रहे हैं। तो आवाम को शऊर में आना चाहिए। थैंक यू। एक बात कही है, उनका ये कहना है कि जो धरने दिए जा रहे हैं उससे बैनर से रोकी गई हैं, तकरीबन 10 अमवात हुई हैं, जबकि आप लोगों का क्लेम तो ये है कि हमने कॉल ही नहीं की। कि आपकी पार्टी इस मैटर को कैसे सॉल्व करेगी कि कम अज़ कम एम्बुलेंसों को आने का रास्ता दिया जाए, और क्या उनका ये दावा दुरुस्त है कि 10 अफराद जाँ बहक हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास डाटा नहीं है इस चीज़ का, लेकिन बात यह है कि इमरान खान से लोगों की मोहब्बत है और वो इतना बड़ा लीडर है जो ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। और पंजाब की जो जेल है, जिस जेल में इमरान खान साहब हैं, वो मरियम के ही अंडर है एज चीफ मिनिस्टर। और जिस तरीके से वो बिहेव कर रही है कि एक्सेस नहीं दे रहे फैमिली को, खाली मिलवा ही दें ना, खान साहब खुद बता देंगे कि जी क्या पोजीशन है। वो जो मॉलेज का कह रहे हैं, फैमिली का कह रहे हैं, तो मिलवाने में क्या हर्ज है इनको? क्या मरियम नवाज़ नहीं मिलती थी नवाज शरीफ से? क्या मरियम नवाज़ के वालिद को हमने, चाहे ठीक था या चाहे गलत था प्रेगनेंट में, क्या हमने 30 रुपये के स्टाम्प में बार नहीं भेजा? तो बात यह है कुछ इंसानियत भी होती है। चलो कानून तो इस मुल्क पे नहीं है, आइन भी नहीं है, इंसानी हकूक भी नहीं है, लेकिन इंसानियत तो है। इंसानियत में भी कोई किसी का ज़र्फ भी होता है, कोई एहसान भी होता है। इमरान खान का एहसान है उनके ऊपर। ये तो एहसान फरामोशी है कि उस पर जब वक्त आया तो आप इस तरह कर रहे हैं। बाकी जो रास्ते बंद हैं उसमें एम्बुलेंस को फैमिली को रास्ता दिया जा रहा है, लेकिन जाहिर बात है हो सकता है बाद फैमिली फंस जाती है। जब 5-6-8 मिनट की लाइन लग जाए तो उसमें निकलना बड़ा टाइम लग जाता है। तकलीफ तो बिल्कुल है, कोई शक नहीं है, लेकिन इधर हमारी तकलीफ भी देखें ना कि हमारा लीडर इस वक्त उसकी सेहत का सीरियस इशू बना हुआ है, वो किसी को नजर नहीं आ रही। अच्छा, गंडीपुर साहब के बिल्कुल डेड लॉक है या इमरान खान की सेहत के हवाले से कुछ जो पावर कॉरिडोर है वहाँ से कुछ सुनवाई हुई है, कोई बातचीत हुई है, या बिल्कुल डेड लॉक है? आपके नॉलेज में क्या है? मेरा तो रब्ता है नहीं, जिन लोगों का रब्ता है और खान साहब ने उनको नॉमिनेट किया है तो उनको ये पता हो सकता है कि किससे बात उनकी हो रही है, क्या बात हो रही है, डेड लॉक कहाँ पे है, क्या ऑफर ट्रीटमेंट के हवाले से। तो बस हमें तो जो चीज़ आती है हम तो वही आपको बता सकते हैं, बाकी वो बात हमें पता नहीं है, उसके कमेंट में कैसे करूँ। अच्छा, मीडिया भी इस वाले से बड़ा कंफ्यूज है कि जो साबिक सीएम है, जिसके बड़े अच्छे मजबूत राब्ते थे पावर कॉरिडोर से और जो बड़ी एफर्ट्स कर रहा था, वो पॉलिटिकल कमेटी ही भी नहीं है, उसका नाम ही नहीं लिया गया। बस वो तो पॉलिटिकल कमेटी बनाई है, सवाल कमराजा साहब ने, हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, वो तो उनकी मर्जी है, इसको डाला है उन्होंने। तो बाकी ऐसे वर्कर हम मौजूद हैं और जो भी हमें पार्टी लाएमल देगी, जो खान साहब ने लोग नोटिफाई किए हैं, नॉमिनेट किए हैं, हम उसके पाबंद हैं। अच्छा, एक और बात, आपने कल जो इंटरव्यू दिया है बहुत खुल क्या बात करते हैं, कल भी आपने इसी लेवल लहजे में बात की, क्या आपने अपने लिए पार्टी में मुश्किलात ही पैदा कर दी? देखिए जी, बात यह है कि एक तो मसला ये है ना, एक कंटेंट होता है कुछ और उसको फिर बना दिया जाता है कुछ। एक तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग हैं ना, देखिए आप मीडिया से या सोशल मीडिया या व्लॉगर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उसमें तो एक चाहिए, उसको मिर्च चाहिए, कोई चुटकिली चाहिए ना, उसने चलानी है, लेकिन आवाम को तहकीक करनी चाहिए। आप कंटेंट को देखें। मोहसिन नकवी का मैंने जो कंटेंट बताया है वो मुज़ाकराती और मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से बताया है। मैं उस पर कायम हूँ कि उसने पूरी मेहनत दिल के साथ कोशिश की कि इमरान खान का मसला हल हो। जो उसका 9 मई के बाद, 9 मई से पहले उसका 26 नवंबर को जो रवैया है, उसके बारे में असेंबली फ्लोर पे मैं बता चुका हूँ। ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस मेरी स्पीच मौजूद है कि मेरा उसके बारे में क्या राय, और कल मैंने रात को फिर दी है कि वो उसने जो जुल्म किया है, कत्ल किया है, शहीद किया हमारे लोगों को। अब वो कंटेंट और है, ये कंटेंट और है, उस कंटेंट को आप मिस करके और लोग तहकीक करते नहीं हैं। बस दूसरा सनम जावेद वाला, सनम जावेद का मैंने ये बोला कि सनम जावेद
घूमने के लिए निकली मुझे बताए बगैर। सनम जावेद मेरे पास कितने अरसे थी पता है आपको? 2 महीने मेरे पास यहाँ थी वो, सेफ माशाल्लाह मेरी बहनों की तरह है। उसके बाद मेरे पास KP हाउस में CM हाउस में थी। कितना अरसा, कितने महीने, ठीक है। अब मुझे बताए बगैर अब घूमने जाने, तो हमारी माँ बहन घूमने नहीं जाती है, उसको गलत रंग दे दिया इन्होंने। वो मुझे बताए बगैर गई, ज्यादती की ना उसने कि मुझे बताए बगैर कैसे वो जा रही है। अच्छा, अब CM हाउस में कुछ लोगों की एक्सेस है, गाड़ियों की एक्सेस होती है, उसमें वो चली गई उस एक्सेस की वजह से। उसके बाद वो सिक्योरिटी ना होने की वजह से वो जब वहाँ पे गई, उधर जाके सहेली FIR हुई पड़ी, उसकी सहेली का नाम भी है, वहाँ से चली गई वो शॉपिंग मॉल से कॉफ़ी पीने। FIR मौजूद है, मैंने FIR कराई, उसमें मौजूद है अपनी सहेली के साथ। वहाँ से जब वो आ रही थी तो अपॉर्चुनिटी थी उससे ज़्यादा, अगले उसको अगवा करके ले गए। सारा बलबा मेरे पे आ गया कि जी अली अमीन ने अगवा करवा लिया है, अली अमीन ने पकड़वा दिया है। तो मैंने तो ये कहा है, वो नाम मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैं किसी बंदे का नाम जिसकी एक्सेस थी और वो उसको ले गया, मैं नहीं बता सकता। क्यों बताऊँ मैं? उसको रंग दे दिया कि जी उस करेक्टर से बात कर रहा है वो मेरी बहनों की तरह मैंने उसको रखा हुआ था। मैं तो कह रहा हूँ घूमने हमारी बहन नहीं जाती, घूमने गई मुझे बताए बगैर गई, और वो घूम रही है उधर। पहले एक गाड़ी में गई, वो गाड़ी में फिर भी कोई सिक्योरिटी हो जानी थी उसकी, क्योंकि एक्सेस वाली गाड़ी थी, किसी ऐसे बंदे की होगी ना कि जिसकी CM हाउस में एक्सेस थी, सरकारी बंदा होगा। उसके बाद प्राइवेट सहेली के साथ बैठ कर, और FIR में सारी बात मौजूद है, उसकी सहेली का पूरा बयान है उसके अंदर जो मैंने करवाई है। उधर जाके कॉफ़ी पी रही है और अकेली लड़की के साथ घूम रही है। तो बाद उसका कंटेंट क्या बना दिया, कंटेंट कुछ और था कि जी उसे कंटेंट ने बात कर दिया। ये इतना लानती काम है कि हमारे लोगों में अखलाकियात खत्म हो चुकी हैं, कंटेंट कुछ और होता है, बना कुछ और देते हैं, और इससे हमारे जो अखलाकियात गिर रही हैं, हमारी कौम उससे पीछे जा रही है। तो ये लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि कंटेंट क्रिएटर तो अपना कंटेंट निकालता है अपनी चीज़ चलाने के लिए, आप पे ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उस कंटेंट को देख कर कोई भी राय कायम करते हैं तो राय कायम करें। ऐसे ही बस शुरुआते में जो है ना आप शुरू हो जाते हैं, बगैर तहकीक के शुरू हो जाते हैं। इस्लाम में भी है कि किसी के बारे में कोई राय कायम करो, किसी के बारे में कोई इस तरह की बात करो तो पहले तहकीक करो, वरना तुम गुनाहगार हो उस शख्स के। तो मेरी अपने लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप पॉजिटिव मैच्योरली बिहेव करें। इस तरीके के बिहेवियर जो हैं ये अजीम कौमों के नहीं होते, अजीम लोगों के नहीं होते। तो ये कंटेंट क्रिएटर के पीछे जो इस तरह गलत कंटेंट, मैंने चेक तो किया कि सवाल क्या हो रहा है, बना क्या दिया। सवाल हो रहा है मुज़ाकरात के हवाले से, बना दिया उसको 26 नवंबर। तो अब 26 नवंबर में मेरी स्पीच निकाल दी असेंबली वाली, उसके 3 दिन बाद या 2 दिन बाद की, तो उससे कोई माफ़ी मांगेगा मुझसे कि इन्होंने क्यों इतना गलत? ना, कोई भी नहीं मांगेगा। और इस बंदे ने मार दिए, पूछने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए वो जो बेलगाम में घोड़ा बनाया हुआ है, कोई सजा जदा नहीं है, जिसके मुँह में जो है अगले पे इल्ज़ाम लगा दे, बाद कंटेंट को चेंज कर दे, कोई सजा यहाँ पे है नहीं, तो उसका लोग गलत फ़ायदा ले रहे हैं। तो आवाम को शऊर में आना चाहिए। थैंक यू।